Hello everyone, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan, and in this new series of videos related to business law. Today in this video I am going to discuss about the Negotiable Instrument Act 1881. Already we have discussed in previous video about the basic concept of the Negotiable Instrument Act 1881 and what about the essential characteristics of Negotiable Instrument Act 1881, and already in second video we have discussed summarized version of the all three negotiable instruments like promissory notes, check and bill of exchange. In this video I am going to discuss about check, very important one for your examination point of view. Then in this video I am going to discuss about the check, some essential characteristics of the check and some classifications of check, which one is very popular now. Okay, let's start. Already we know very well about the check. Check is also kind of bill of exchange. Why? Because there are three party in a check as well as there are three party in a bill of exchange also. And as per the legal definition of the check, check is a kind of bill of exchange. Check is a bill of exchange because there are three party. The first one is the drawer, second one is the drawee, third one is the payee. In the case of bill of exchange, the person who draw the bill of exchange or who make the bill of exchange is the maker or drawer, and the person is provide direction to pay. The person is asked to the another person and provide direction to pay. The person is called who get the direction for the payment is drawee, and the last one who get the payment is payee. In the case of check, drawee is always banker. Drawee is always banker. क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में या चेक के केस में ये भी है कि ड्रॉअर भी पेई हो सकता है. ड्रॉअर भी पेई एक नई बात है, लेकिन ड्रॉअर भी पेई हो सकता है. चेक के बारे में डिटेल में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लीगल डेफिनेशन. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच ड्रॉन अपॉन द स्पेसिफिक बैंकर, विच ड्रॉन अपॉन द स्पेसिफिc banker. Banker is the drawee in this case, and it must be drawn upon a specific banker, and it is always payable on demand. It is always payable on demand. क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में रिक्वेस्ट हो सकता है कि भाई वो एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई तब पेमेंट होगा. यहाँ पे तो क्या है, इट इज व्हाट, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन demand and always express order to pay, not requested to pay. It is always order to pay. हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि आप इनको इस स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट करिए. तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चेक. नाउ लेट्स सी, देयर इज वन सैंपल ऑफ द चेक. ऐसा ही चेक होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा. पे, सपोज ये अमाउंट हम पे कर रहे हैं श्रेया श्रीवास्तव. श्रेया श्रीवास्तव को पैसा दिया जा रहा है एंड द अमाउंट इज 10,000 ओनली. द अमाउंट इज 10,000 ओनली. यहाँ पे अमाउंट आती है. नाउ द चेक इज कंप्लीटेड. डेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंशन 10th of July. Now see, who
is maker of the check or who is drawing the check? Here, S.K. Srivastava. सौरभ श्रीवास्तव is the drawer. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने चेक बनाया, the person who made the check, who draw the check is called drawer. And second party is Shreya Srivastava. Who is the Shreya Srivastava? Shreya Srivastava is a payee. And the last one is, who is the drawer? Drawer is the Punjab National Bank is a drawee. पंजाब नेशनल बैंक इज अ ड्रॉई. बात समझ में आ रही है? सौरभ श्रीवास्तव, S.K. Srivastava is the drawer who made the check and give the direction to the drawee, means give the direction to the Punjab National Bank to pay the certain sum of amount, to the Shreya Srivastava. It means Shreya Srivastava is a payee. Always जिसको पैसा मिलता है वो पेई है. बात समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्टीज ऑफ चेक. देयर आर थ्री पार्टी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन डेट. ड्रॉर S.K. Srivastava, in this case drawer is the Punjab National Bank and payee is the Shreya Srivastava. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये तीन पार्टी हैं चेक में. एंड दिस इज वेरी कॉमन ऑल्सो. अगर यहाँ पे क्रॉस हम कर देते हैं, दिस इज अकाउंट पेई चेक. अकाउंट पेई चेक. व्हाट डज मीन्स? मीन्स अब ये पेमेंट जो है वो श्रेया श्रीवास्तव के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा, न कि काउंटर पे जाके कैश लेंगे. ये इनके अकाउंट में ही, ये अमाउंट जो है ये इनके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा. दिस इज द मीन्स ऑफ क्रॉस चेक. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट the specimen of the check and all about the different parties of the check. Now, there are some essential characteristics of check mentioned here. The first one is it must be in writing. Every negotiable instrument, या तो वो promissory notes हो या bill of exchange हो या check हो, it must be in writing. In first video already I told you negotiable instrument means in writing. Instruments means in writing and negotiable means transferable by delivery. It means a written document which is transferable by delivery. A written document which is transferable by delivery. A written document which is transferable by delivery is called negotiable instrument. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर it must be in writing. या promissory notes हो या चेक हो या bill of exchange हो, ये सारे it must be in a writing. Second one is express order to pay. Always check is always order to pay. मैंने पहले भी बताया, it is always order to pay, not requested to pay. हम बैंक को रिक्वेस्ट नहीं करते कि भाई कृपया करके ये पेमेंट कर दीजिएगा. नो, हम क्या करते हैं, बीइंग अ ड्रॉअर हम ड्रॉई को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि आप ये 10,000 का पेमेंट करिए. तो दिस इज ऑलवेज इन द केस ऑफ चेक, ऑलवेज एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे. बट इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यू मे रिक्वेस्टेड टू द ड्रॉई, बट इन द केस ऑफ चेक ऑलवेज ऑर्डर टू pay. And check is always made for the definite person and it is always unconditional order. कोई कंडीशन नहीं होगा कि भाई ये पेमेंट ये चेक का पेमेंट तब होगा जब ये अमाउंट आप जमा कर देंगे, ऐसा नहीं है. या इस जब हमारे पास ये पैसा होगा तब ये चेक आपके पास ये जाएगा. मतलब कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज ऑलवेज अनकंडीशनल एंड इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर. देखिए यहाँ पे है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर एंड ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट. इट मस्ट बी सर्टेन, द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कभी चेक में ऐसा देखें क्या
5 से 10,000 पेमेंट कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। इट मस्ट बी सर्टेन अमाउंट, 10,000, 9,000, 8,560 रुपीज, कुछ भी होगा, जो अमाउंट होगा इट मस्ट बी सर्टेन। एंड ऑलवेज ऑर्डर टू पे द मनी ओनली, इट इज फॉर मनी ओनली। मैंने पहले ही बताया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। हमेशा ये किसका सब्स्टिट्यूट है? मनी का है। मैंने पहले भी बताया था कि पैसे के बदले में जिन कागजातों का लेन देन किया जाता है उसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इट इज ऑलवेज मनी ओनली। सर्टेन 3 पार्टी, तीनों पार्टी सर्टेन होना चाहिए, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे, एंड ड्रॉ अपॉन द स्पेसिफाइड बैंकर। यहाँ पे इस केस में, इस चेक के केस में पंजाब नेशनल बैंक है, आपके पास HDFC का चेक है, तो आपका जो ड्रॉई होगा वो HDFC होगा, वो स्पेसिफाइड होगा। नाउ इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। देखिए यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में, कि ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है एंड एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई तब देगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे ना ही एक्सेप्टेंस है ना ही स्टाम्प की रिक्वायरमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई का एक्सेप्टेंस चाहिए और बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टाम्प चाहिए। यहाँ पे ना ही, इन द केस ऑफ चेक, ना ही स्टाम्प है और ना ही स्टाम्प है और ना ही एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। अब कुछ पॉपुलर चेक के बारे में आपको बताते हैं, जो पॉपुलर है, आप नाम सुनते होंगे, कुछ के बारे में आप जानते होंगे। अगर कोई समझने में परेशानी हो तो एक बार मैं बता देता हूं जल्दी से। हियर इट इज मेंशन ट्रंकेट चेक। ट्रंकेट चेक नाम सुना होगा, ट्रंकेट चेक इज वेरी पॉपुलर वन, नाम सुना होगा लेकिन कंफ्यूजन होगा कि है क्या। ट्रंकेट चेक में क्या होता है, जो आपकी चेक के क्लियर होने की साइकिल है, इसका जो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो छोटा कर देना। छोटा कर देना मतलब इट्स ऑल अबाउट टाइम, कि मतलब जो साइकिल है चेक के ड्रॉन होने की, उसके टाइम में कमी आ जाए। इस केस में क्या होता है, इस केस में बैंकर आपके चेक को स्कैन कॉपी करके लगाते हैं, जिससे आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो पाए। तो स्कैन कॉपी करके लगाते हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। उस प्रकार के चेक को हम ट्रंकेट चेक कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक में आप एकदम ध्यान से बात समझिएगा, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिग्नेचर करेंगे, इंक का यूज करेंगे, नहीं, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक है और आपके डिजिटल सिग्नेचर से ये चलेगा। डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक चेक, इट्स टोटली इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल सिग्नेचर मतलब वो स्कैन्ड वाला सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट, इट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक check and signature made by digital signature. Now there are some other popular one, ordered check. This is the example of ordered check. क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाना है, इसलिए श्रेया श्रीवास्तव को ये पैसा मिलना है, इसलिए दिस वन इज ऑर्डर्ड चेक। लिखा है यहाँ पे या धारक को और बियरर मींस व्हाट। यहाँ पे अगर कोई नाम नहीं देके अगर हम ब्लैंक कर दें तो, और अकाउंट पे ही यहाँ पे हटा दें, ये ब्लैंक कर दें, तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज द बियरर चेक। मतलब हमने जो इस चेक को लेके जाएगा उसको ये पेमेंट मिल जाएगा। बियरर मीन्स होल्डर इज द ओनर। नाउ द लास्ट वन इज क्रॉस चेक। क्रॉस चेक मैंने बताया, अगर यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, पहले भी बताया मैंने कि अगर यहाँ क्रॉस कर देते हैं और अकाउंट पे ही कर देते हैं तो केवल श्रेया श्रीवास्तव के अकाउंट में ही जाएगा। वैसे ही अगर कुछ स्पेशल क्रॉस और होते हैं, लाइक अगर हमने लिख दिया SBI, तो ये SBI बैंक के अकाउंट में ही जाएगा। अगर श्रेया श्रीवास्तव का अकाउंट HDFC में है तो उसमें ये पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, इट मस्ट बी ड्रॉन इन अ SBI अकाउंट। दिस इज ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉस्ड। तो दिस इज अबाउट क्रॉस चेक। तो दैट्स ऑल अबाउट द चेक, concept of the check as well as essential characteristics of the check, specimen, parties as well as
some popular kinds of check. I hope आपको बात समझ में आई होगी. Thank you so much. धन्यवाद.